ملتان میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے جلد تھلیک ہو گیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں کئی فٹ بارش کا پانی جمع ہو گیا جو شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ انصار کالونی کے مکین واسطہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ملتان میں گزشتہ روز کی بارش سے شہر ہوا پانی پانی۔ بارش کا پانی انصار کالونی کے مکینوں کے لیے بنا وبال جان۔ کالونی کی گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ چیزیں جو سر ویران ہوئی پڑی ہیں، میں انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی فرما کر ایم ڈی واسطہ صاحب سے اور وزیر پنجاب سے میں گزارش کروں گا کہ نوٹس لیں۔ علاقہ مکین واسطہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے اور واسطہ انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری ہونے کے باوجود واسطہ انتظامیہ نے بر وقت انتظامات نہیں کیے۔ 3 مسجدیں ہیں شاہین آباد والے روڈ پہ، 3 مسجدیں ہیں۔ پچھلا جمعہ بھی لوگوں کو اعلان کر کے مسجد میں بلایا گیا، 7 سے 8 نمازی جو ہیں نماز کے لیے تشریف لائے اور آج بھی جمعے کا دن ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ بارش کے پانی سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے جو باعث تشویش ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملتان میں مزید 2 سے 3 روز تک بارش ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ دوسری جانب واسطہ انتظامیہ شہر میں پہلے سے موجود بارش کا پانی ابھی تک نہیں نکال سکی۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ سید زہیر بخاری، ملتان۔ رخ کریں گے کوہ سلیمان کا۔ کوہ سلیمان سے سیلابی ریلوں، ندی نالوں، رود کوہیوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے شدید طغیانی اور پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کوہ سلیمان میں متعدد سیلابی ریلیں، برساتی ندی نالے، رود کوہیاں آئی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی، بتائیے برساتی ندی نالوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلیمان میں جو ہے وقفے سے تیز موسلادھار طوفانی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے کوہ سلیمان میں جو ہے بڑے سیلابی ریلے جو ہیں وہ بہہ نکلے ہیں۔ تو اسی طرح مٹ چانڈیا، کوہ سلیمان کے جو دیگر علاقے ہیں، کھرڑ بزدار، تمن بزدار، تمن کیسرانی، تمن کھیتران، تمن لگاری، تو یہاں پر بڑے برساتی ندی نالے جو ہیں آئے ہوئے ہیں۔ رود کوئیاں بھی آئی ہوئی ہیں، سخی سرور کا بھی بڑا برساتی نالہ جو آیا ہوا ہے۔ یہ جو سیلابی ریلے کوہ سلیمان سے آئے ہوئے ہیں تو یہ آگے جا کر مزید تباہی مچا سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل بارشوں کا سلسلہ جو جاری ہے۔ ابھی بھی کوہ سلیمان میں آپ سن رہے ہوں گے کہ گرج چمک لگی ہوئی ہے، وہاں پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قبائلی علاقوں کے راستے جو ہیں وہ بالکل منقطع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو بڑے سیلابی ریلے ادھر آئے ہوئے ہیں وہاں تک جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ بھی ندی نالے جو یہاں پر کوہ سلیمان سے ہوئے ہیں تو یہاں پر سے بھی گزرنا مشکل، تو شدید مشکلات کا لوگوں کو اس سے سامنا ہوتا ہے۔ تو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہریں جو ہے بتا رہی ہیں کہ کوہ سلیمان میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے جو ہے مزید ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے، پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شدید موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کوہ سلیمان میں چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے راستے من کرتے ہیں، قبائلی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ان برساتی ندی نالوں کے پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ، سیلابی ریلوں میں طغیانی، اور یہ جو برساتی ندی نالے ہیں آگے یہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ ریلیف آپریشن بھی اس سے متاثر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پانی کی مقدار میں، یہی پانی آگے تباہی جا کر مچاتا ہے۔ تو بہت ہی ابتر صورتحال ہوتی ہے جب پہلے سے ہی وہاں پر سیلابی صورتحال ہو اور یہ مزید پانی چلا جائے تو وہاں تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ لہریں کس طرح سے ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں، پانی کی مقدار پیچھے برساتی نالوں میں وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ پانی کی یہ مقدار اسی وجہ سے بڑھے، پیچھے برساتی نالے اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ ایک برساتی نالے، اس میں کئی اور شامل ہوں گے۔ اسی طرح قبائلی لوگوں میں شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں اب آپ کو بتائیں تونسا شریف میں اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن بارش سے سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں رکنے کا خطرہ ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی عصمت بزدار۔ جی بالکل، تونسا شریف کے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تونسا شریف میں اس وقت آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو گرمی تھی آج دن میں اس میں جو شدت تھی وہ اس میں واضح کمی آ گئی ہے۔ حبس کا ماحول ہے۔ سیلاب یہاں پہ تونسا شریف میں جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا
पहले से करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप तेज बारिश फिर शुरू हो गई है और इस वक्त देख सकते हैं मेरे ऊपर इंतहाई तेजी के साथ बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश की वजह से सैलाबी इलाकों में जो माहौल है, जो इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है, जो जहाँ पे लोग रिलीफ कैंप के जरिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के पहले ही घर मुनहदम हो चुके हैं, जिनको पहले ही मुश्किलात का सामना है, अब बारिश से उनमें मजीद वहाँ पे सरगर्मियाँ रुक जाएंगी और जो लोग रिलीफ कैंपों में बैठे हैं और वहाँ पे बैठे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोट मोही है, बस्ती अहमदानी है, बरगड़ी है और दीगर जो इलाके हैं इस वक्त सैलाब की लपेट में, अब बारिश से मजीद वहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पे जो करीबी इलाके हैं, नवाही इलाके हैं, वहाँ बारिश है, कोई सुलेमान में बारिश है, जिसकी वजह से जो नाला संकट है वो एक बार फिर भी भर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सैलाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें यहाँ पे तत्तुल पेश आ सकता है। और इसके अलावा जो रोड हाल ही में जो चालू किया गया था चौकीवाला के मकाम पर, वो रोड भी एक दफ़ा फिर यहाँ पे तत्तुल का शिकार हो सकता है। उसकी मरम्मत के जो आर्जी मरम्मत किया गया है वो फिर नाला की जद में आकर यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है, इससे पहले बारिश की वजह से फाजला और तौसा का राब्ता इससे कबल ही मुनक़ता हो चुका है। बारिश वहाँ पे भी हो रही है और जहाँ पे भी बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। करने के लिए आपका शुक्रिया। आप रुख करेंगे चिश्तियां का। मानसून बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लग गई। बारिश के बाइस मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी तो ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। चिश्तियां में गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। आपको बता रहे हैं चिश्तियां से, जहां मानसून की बारिशों का मुसलसल सिलसिला जारी है। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। अब खबर शामिल करते हैं कि चिश्तियां में मानसून की बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश के बायस मौसम खुशगवार है, जबकि गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। दुनियापुर से खबर शामिल करते हैं, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी मेन बाजार में दाखिल हो गया है। दुकानों में लाखों रुपए मालियत का सामान खराब हो गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर और गिरदोनवा में आज फिर जो है मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कि लोगों को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर गलियाँ महल्ले जो है वो नदी नालों का मंजर तो पेश कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन बाजार है वहाँ भी पानी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इन लोगों का यही कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की इंतहाई नाहली है कि जो कि आए रोज यहाँ पर इसी तरह से पानी खड़ा हो जाता है। इनका कहना यह है कि सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर यही मसाइल हमारे दरपेश रहते हैं। इस वक्त कोई शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज में जाते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? बारिश के इन हालात की वजह से हमारे साथ ये हालात हुए हैं। 3-3, 4-4 फुट पानी मार्केट के अंदर ठहरा हुआ है। इस वक्त लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। ताजर बरादरी यहाँ पर सारे सरापा एहतजाज खड़ी हुई है। तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी किसी भी तरह का रिस्क हमारे साथ या हमारे कॉपरेट करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं है। कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट के जो भी सेक्टर है इस हवाले से, सफाई के हवाले से या तुगयानी के हवाले से, जो भी इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारे साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात या हमारे साथ बेहतर करने की इनका कोई ये सद्देबाब करने का किसी भी तरह का ये हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इनको कॉल्स करते हैं, मैसेजेस अगर हमारी तरफ से कन्वे होते हैं, रोज हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार होती है। अभी सुपर टैक्स की सूरत में हमारे पर 6-6, 10-10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगा रही है। लेकिन इसके बरक्स हमारे लिए सहूलियात की ये देख लें, ये आपके सामने अगर कैमरा आप लोगों को दिखा सकता है तो यहाँ पर 4 फुट 5 फुट दुकान के अंदर पानी जा चुका। हमारा अपना जाती जो है नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है इसके अंदर। अजी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि आए रोज हुकूमत की जानिब से बिजली के रेट भी बढ़ा दिए जाते हैं और खास तौर पर जो अब सुपर टैक्स भी लगा दिया है वो भी यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है हमें सहूलियत बिल्कुल नहीं रह जा रही। इनका कहना यही है कि रोजाना की बुनियाद पर होने वाली बारिशों की वजह से रोजाना यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और लाखों रुपए का हमारा नुकसान होता है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के कान पे जूं तक नहीं देने वाला। हकाम से खास तौर पर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से ये तालबा किया है कि फौरी तौर पर इस पानी का कुछ सद्देबाब किया करने के लिए आपका शुक्रिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का बिजली बिलों में आयद इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा सामने आया। मुजाहरे में बिजली के बिल पहले फाड़े गए फिर जलाए गए। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान ने एहतजाज की क़यादत की। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान बिजली बिलों में आयद इजाफी टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजर रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरे में बिजली के बिल पहले फाड़े और फिर जलाए।
मैपको और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान ने मुजाहरे की क़यादत की। पूरे एहतजाज भी किया, ये पूरे मुल्क का ताजर जो है वो सड़कों पर आ जाएगा इंशाल्लाह। एक दो दिन में हम हफ्ते वाले दिन एक भरपूर एहतजाज करेंगे। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत अगर ये ना मानी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत को कि पूरे मुल्क का ताजर जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हड़ताल भी करेगा, शटर डाउन भी करेगा, पहिया जाम भी करेगा। ख्वाजा सुलेमान का कहना था कि इस हुकूमत ने ताजरों को रोन दिया है। आए रोज टैक्सों का बोझ ताजरों पर डाल दिया जाता है। हफ्ते के दिन मुल्क भर में बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज होगा। हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। पूरी कौम इस वक्त लोड शेडिंग की वजह से जहनी मरीज हो चुकी है, और जब जहनी मरीज को बिल मिलेगा 5-5 गुना ज्यादा तो जाहिर है वो क्या रिएक्ट करेगा। लिहाजा हम इस सिलसिले को कबूल नहीं कर रहे। ताजिरों ने इस पर शदीद एहतजाज किया कि इस सिलसिले को। मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान सिटी के सदर खालिद कुरैशी का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल साहब हंस कर कह देते हैं टैक्स तो भरना पड़ेगा, महंगाई तो होगी। ऐसे लोगों को इनके ओहदे से फौरन हटाया जाए। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजिर फट पड़े। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर इत्तेहाद ने मैपको हुकाम और हुकूमत के बैनर लगा दिए। ताजिरों का कहना है इतना बिल नहीं जितना टैक्स लगाया गया है, कारोबार तबाह हो चुके, हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के निर्खों में कमी लाए। बिजली के बिलों में नए टैक्सेस और इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में ताजिर नुमाइंदों ने बसीरा बाजार में हुकूमत और मैपको के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इसी दौरान ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ताजिरों का कहना था कि अगर बिजली के बिलों में टैक्स वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। गरीब आदमी जिसको किराए पे दुकानें हैं वो पहले ही परेशान हाल हैं, हर तरह से मजबूर और बेकस। ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बाइस शदीद परेशानी का भी सामना है। मैपको हुकाम को कई बार दरखास्त दे चुके हैं मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। बिजली के बिलों में इजाफा आम शहरियों और ताजिरों पर जुल्म के मुतरादिफ है। इन्होंने ये बिल वापस ना लिया, इन्होंने ये टैक्स वापसी ना लिया तो इसका जिम्मेदार फिर वक्त के हुक्मरान और वक्त की हुकूमत होगी। वफाकी इदारों से हमारी फिर दोबारा मोदबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमें सड़कों पे ना लाएं, हमें रोडों पे ना लाएं। ताजिरों ने बिजली के बिल हाथों में उठाकर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताजिरों का मजीद कहना था कि जब तमाम शहरों के ताजिर मिलकर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत को इनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, मुल्तान जिला कचहरी में मुल्जिमान की तरफ से दायर दरख्वास्त जमानत पर फैसले इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। वकला का कहना है कि दरख्वास्त जमानत पर फैसलों में ताखीर से फौरी इंसाफ की फराहमी में रुकावटें आती हैं। मुल्तान जिला कचहरी में मुल्जमान की दरखास्त जमानत पर फैसले इल्तवा का शिकार होने लगे। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जमानत की दरखास्तों पर मजिस्ट्रेट को 3 दिन में फैसला करना होता है, जबकि सेशन अदालत को 5 रोज में फैसला करने की हिदायत की गई है। IFs बैठे हैं या जो पॉलिसी वो बनाते हैं उसको फिर ये कंट्रोल नहीं, चेक नहीं करते, वरना ये आर्डरों की हद तक तो हो जाती है मीटिंगों में, लेकिन नीचे फिर वो सेशन जज साहिबान से या जो भी जुडिशल ऑफिसर है उनसे रिपोर्ट नहीं मांगते। वकला का कहना था कि जमानत की दरखास्तों पर कई माह तक फैसले नहीं हो पाते। अदालती डाटा के मुताबिक माह जून में जिला कचहरी में जमानत की 800 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गईं। इस वक्त जमानत की जेर इल्तवा 217 दरखास्तों पर फैसले होना बाकी हैं। जिस तरह कोड किया गया जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, तो देख लें इधर केसेस जो हैं इल्तवा का शिकार होते हैं उनमें जो वकला हड़तालें भी शामिल हो जाती हैं, पुलिस का भी अदम ताउन है, अदालतों में जजेस की जो है कमी है। इस वजह से जो मुल्तान कचहरी में देख लें आप हज़ारों केसेस जो हैं सालों साल से लटके हुए हैं। वकला कहते हैं कि जजेस की कमी, पुलिस का अदालतों से अदम ताउन, फरीकैन की मुकदमाबाजी और वकला हड़ताल के बायस जमानत की दरखास्तों पर फैसले मुकर्ररा वक्त में नहीं हो पाते, जिस वजह से फौरी इंसाफ की फराहमी में रुकावटें आती हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। भक्कर में वापडा की तरफ से ओवर बिलिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाजी इजलास। अंजुमन ताजरान ने 4 अगस्त को एहतजाजी धरना देने का फैसला कर लिया। अंजुमन ताजरान का एहतजाजी इजलास तहसील काउंसिल में मुनक्किद हुआ, जिसपे सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान, जनरल सेक्रेटरी मलिक आशिक खोकर और सलीम अख्तर शेरू ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत ओवर बिलिंग और टैक्स वापस ले। हुकूमत ने अहकामात वापस न लिए तो 4 अगस्त को वापडा ऑफिस के बाहर धरना देंगे।
असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला साजिद मुनीर कल्यार इन एक्शन कम पैमाना वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाइयां जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने 2 पेट्रोल पंप्स को कम पैमाना और ओवर चार्जिंग पर 1,30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। हाफिज फिलिंग स्टेशन हाफिज वाला को 50,000 रुपए जबकि क्लासिक स्टार पेट्रोलियम को 80,000 रुपए जुर्माना किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कल्यार का कहना था कि कम पैमाने और ओवर चार्जिंग करने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 2 नंबरी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी। खुशाब में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। भारी मिकदार में मुज़र सेहत मसाला जात और नाकिस मिठाई तलब कर दी गई। फूड अथॉरिटी ने मेन खुशाब रोड और चक 8 में कार्रवाई की। सफाई के नाकिस इंतजामात और फूड एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एक प्रोडक्शन हाउस को बंद किया गया। सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 12 फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए। खुशाब से आपको बता रहे हैं जहां पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। भारी मिकदार में मुज़र सेहत मसाला जात और नाकिस मिठाई भी तल्फ कर दी गई। मेन खुशाब रोड और चक 8 में कार्रवाई की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात और फूड एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एक प्रोडक्शन बंद जबकि फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 12 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। हुकूमत पंजाब की तरफ से 2,000 रुपए फी घराना पेट्रोल सब्सिडी की अदायगी जारी है। रकूम अदायगी में रिटेलर्स की जानिब से किसी भी कटौती की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP यजमान अतर हुसैन ने अड्डा 13,000 और टीलावाला में चांदनी चौक का विजिट किया। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP अतर हुसैन ने पेट्रोल सब्सिडी रकूम की मुकम्मल अदायगी बारे खवातीन से दरियाफ्त किया। उन्होंने खवातीन के बैठने और पीने के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने शिकायत पर अड्डा चांदनी चौक के एक रिटेलर की डिवाइस ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि मुस्तहिक घरानों को रकम की अदायगी में रिटेलर की तरफ से किसी किस्म की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली रिजवान उमर गोंदल का तबादला कर दिया गया। एडिशनल IG डिसिप्लिन लाहौर मोहम्मद नवीद को DPO मियांवाली लगा दिया गया। DPO मियांवाली रिजवान उमर गोंदल को सेंट्रल पुलिस लाहौर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में पुलिस में तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने तकर्रुरी के मुंतजिर SP कैप्टन रजा काजी अली रजा को गुलगश्त डिवीजन में तैनात कर दिया है। तकर्रुरी के मुंतजिर कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा SP गुलगश्त तैनात हो चुके हैं। तैनाती के अहकाम एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने जारी किए। SP हसन जहांगीर के तबादले के बाद ये सीट खाली हुई थी। SP कैंट हसन अफजल से गुलगश्त डिवीजन का आर्जी चार्ज वापस लिया गया। अब आपको बताएं निश्तर हस्पताल मुल्तान में आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया गया। इस मुनासबत से डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी ने हेपेटाइटिस से आगाही के लिए सजाया सेमिनार, आगाही वॉक भी की गई। मुल्तान निश्तर हस्पताल में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया गया, जिसका एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने किया। इस मौके पर हेपेटाइटिस से आगाही के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। सेमिनार में मुल्क भर से माहिरीन अमराज जिगर आंत मैदा ने शिरकत की, जिसका मकसद मरीजों में इस मर्ज से आगाही और मुल्तान के डॉक्टर्स को जिगर के अमराज के जदीद तर्ज इलाज से आगाही फराहम करना था। ये सारी लेवर से फैलती हैं और यहीं से कैंसर का मौजू बनती है। और अगर आप इसमें एहतियात करें और अपने टेस्ट करवाते रहें और कोई ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो कि यूज सिरिंज इस्तेमाल करते हैं या वो आपके पास इन्फेक्टेड लोग हैं जिनसे फैल सकता है, उनसे एहतियात की जाए तो ये नहीं फैलता। प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना था कि हेपेटाइटिस एक मोहलिक बीमारी है जो जिगर को मुतासिर कर देती है। इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डॉक्टर फैसल डार ने कहा कि आवाम को चाहिए वो हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाएं। बहुत अच्छा हेपेटाइटिस का जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्लिनिक भी है, जहाँ पे तकरीबन 200 मरीज डेली देखे जाते हैं। और इसका मकसद यही है कि हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज अगर अर्ली स्टेज पे बहुत मामूली से स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए रिकग्नाइज कर लिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। हेपेटाइटिस डे का मकसद यही है कि अपने आप को चेक करवाएं, और क्योंकि हेपेटाइटिस एक खामोश कातिल है, इसकी अलामात नहीं होती,
بعض اوقات انیشیل اسٹیج کے اوپر یہ جب آپ روٹین ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے. ہمارے لیے پرابلم یہ ہے ہماری پبلک میں ہم لوگ چیک نہیں کرواتے. آگاہی سیمینار میں ہیڈ آف گیسٹرو انٹرولوجی نشتر ہسپتال ڈاکٹر یاسر زیدی، ڈاکٹر شہریار کانجو، ڈاکٹر ذوالقرنین حیدر، ڈاکٹر قاسم عمر نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. اچھی خبر آپ کو دیں گے. رحیم یار خان میں کسانوں کی کھاد کے حصول کے لیے پریشانی ختم. ای فرٹیلائزر سسٹم سے کسانوں کو کھاد ملے گی. ای فرٹیلائزر سسٹم کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے چیمبر آف کامرس میں تربیت ورکشاپ کا انعقاد بھی کیا گیا. دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی یہ رپورٹ. کھاد کے حصول میں کسانوں کی پریشانی ہوئی ختم. حکومت نے کسانوں کو کھاد کی فراہمی آسان بنانے کے لیے ای فرٹیلائزر سسٹم بنا دیا. ای فرٹیلائزر سسٹم کے بارے آگاہی دینے کے لیے چیمبر آف کامرس میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جہاں خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت کا کہنا تھا کہ کھادوں کی تقسیم کا میکینزم بنانے کے لیے ای فرٹیلائزر سسٹم بنایا گیا ہے. گرداوری اور زرعی زمین پر کھاد ملے گی. اس کا بیسک جو پرپز ہے، جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں بٹوین فرٹیلائزر ڈیلرز اینڈ فارمرز، ان کو حل کیا جائے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اقرار حسین کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان میں کاٹن، گنا اور باغات ہیں. ای فرٹیلائزر سسٹم سے رحیم یار خان میں کھاد کی ترسیل بہتر ہوگی. ضلع رحیم یار خان جو ہے یہ ملٹی کراپنگ ایریا ہے. یہاں کاٹن بھی ہے، شوگر کین بھی ہے، باغات بھی ہیں. تو یہاں جو ہے وہ کھاد کی منصفانہ تقسیم کے لیے زمیندار چونکہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک روزہ یہاں ٹریننگ کا انعقاد کیا ہے. فصلوں کی بہترین پیداوار کے لیے کھاد ایک لازمی جزو ہے. کھاد کی عدم دستیابی نے فصلوں پر منفی اثرات بھی مرتب کیے ہیں. ای فرٹیلائزر سسٹم کے رائج ہونے سے کسانوں کی کھاد کے حصول میں پریشانی ختم ہو جائے گی. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. پاکستان کا 75واں یوم آزادی منانے کے لیے اوریو پرجوش. ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی کو اوریو نئے لمیٹڈ ایڈیشن کوکی ڈیزائن کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اوریو جشن آزادی کی تقریب بھی سجائی گئی. لاکھوں نوجوانوں اور زندہ دل لوگوں کا ملک پاکستان 75 سال کا ہو گیا. اوریو 110 سالہ پرانا آئیکن ہے جو پوری دنیا میں زندہ دلی اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا ہے. پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اوریو نے اپنا اسپیشل ایڈیشن بسکٹ کا ڈیزائن لانچ کیا ہے. اوریو پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا بسکٹ ہے جو خصوصی ایڈیشن میں دیدہ زیب ہے. گرین لمیٹڈ ایڈیشن کے پیک پر اوریو نے مینار پاکستان، چمبیلی کے پھول، چاند، ستارے کو نمایاں انداز میں دکھایا ہے، جبکہ بیچ میں اوریو کے لوگوں کو اردو میں پاکستان سے تبدیل کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں اوریو یوم آزادی کی تقریب بھی سجائی گئی جس کی میزبانی ڈینو علی نے کی. تقریب میں سروت گیلانی، زہرا نور، شہروز سبزواری، سلیمہ فرشتہ، اقرا عزیز، جنید خان، ایمن خان نے خصوصی شرکت کی. Today we celebrate Independence Day. Pakistan is 75 years old. What a journey it's been. But we have achieved and we are 75 years of age today. چیف مارکیٹنگ آفیسر رافع زبیری کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ اس خصوصی ایڈیشن کو لانچ کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن کانٹیننٹل بسکٹ کی ٹیم نے اسے کمال طریقے سے ممکن بنایا. ہماری نظر میں جشن آزادی کو منانے کا یہ بہترین طریقہ ہے.